بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پروگرام سلام صبح کے ساتھ میں ہوں عبد الرحمن فریدی اور میرے ساتھ موجود ہیں مقبول الہی۔ پروگرام کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد شروع کرتے ہیں۔ آج کی روشن صبح میں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے ارد گرد کے ماحول اور لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کے لیے ہمیشہ کی طرح تیار ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ عیسوی سال کو اگر دیکھیں تو 17 مئی 2024 ہے، اور اگر ہجری سال کی طرف نظر دوڑائیں تو 1445 ہجری اور 2 ذیقعد ہے، ذیقعد کی 8 تاریخ ہے۔ اگر دیسی مہینہ اور تاریخ دیکھیں تو 2 جیٹھ ہے۔ معزز ناظرین، جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس دن میں ہمارے مسلمان خاص طور پر اہتمام کر کے تیار ہوتے ہیں، خوبصورت صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور جمعہ کی تیاری کرتے ہوئے مساجد کی طرف رواں ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ مرد حضرات مساجد کی طرف اور عورتیں اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرتی ہیں۔ آج کی خوبصورت بات سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے، اور آج کی خوبصورت بات یہ ہے کہ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے۔ یہاں میں آپ بتاتے چلوں آپ کو کہ آج کا جو موسم کی صورتحال رہے گی اس میں شدید گرمی ہوگی اور لیے کا درجہ حرارت آج 43 سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ میرے صاحب، آپ حضرت ابوبکر صدیق کی جو بات میں نے کی ہے اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ میری کیا اوقات ہے کہ میں کچھ عرض کروں۔ جس طرح فرمایا گیا کہ اللہ سے مانگو، بھروسے کے ساتھ مانگو۔ جی، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اور آگے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک کے بعد سب سے جو افضل شخصیت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ سارا آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ کرام اور ساری شخصیات، اور یہ ساری شخصیات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور سب سے بڑی جو ذات مبارکہ ہے وہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ جو قول آپ نے فرمایا ہے یہ اسی سلسلے کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہے، بندے کے اپنے رب کے بارے میں گمان کے مطابق سلوک فرماتا ہے۔ بندے کا اپنے رب پر جتنا گمان، جتنا بھروسہ، جتنا یقین ہوگا تو اس کی بات میں، اس کی التجا میں، اس کی اپیل میں، درخواست میں اتنا ہی زیادہ کمٹمنٹ ہوگی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا کے حکمرانوں اور کائنات کے حکمران کے درمیان بھی بنیادی فرق ہے کہ دنیا کے حکمران مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں اور کائنات کا حکمران نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مقدس ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان، اول و آخر، تمام کے تمام انسان اگر
उनकी तमाम फरमाइशें जो वो चाहते हैं, ख्वाहिशें, वो सारी की सारी पूरी हो जाए, तो उस रब की कायनात में इतनी भी कमी वाक़ई नहीं होती जितनी कमी समंदर में सुई को डुबोए और सुई को बाहर निकाले और सुई पे लगने वाले पानी जितनी भी कमी वाक़ई नहीं होती। अल्लाह इतना बड़े हैं और इतने कादिर हैं। कादिर हैं, मुख्तार हैं और सब कुछ है। और आगे फरमाया कि अगर सारे के सारे इंसान उसकी नाफरमानी पे लग जाए तो उसकी कायनात में फिर भी कोई कमी वाक़ई नहीं है। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह बेनियाज है, बिल्कुल बेनियाज है। और उस बेनियाज का ये अपनी फरमान है अपने हाँ जी, बंदों के लिए कि उसके बंदे अपने रब से मांगे, वो सबको अता फरमाता है। बिल्कुल अल्लाह पाक जो है वो वो रहमान अपने है अपने और रहीम है, अपनी मखलूक से प्यार भी तो वो करते करीम हैं, है। बहुत प्यार करते हैं। हाँ जिस जी, तरह एक माँ प्यार करती है माँ से अपने बच्चे से, 70 गुना जायद अल्लाह कई पाक गुना ज्यादा अपने जो है प्यार हाँ जी करते प्यार करते हैं। हैं। हाँ तो जी, और जिससे प्यार होता है ला महला, उसको फिर बंदा उससे उस प्यार और मोहब्बत का तकाजा है, उसको उसी हैसियत से अपनी हैसियत के मुताबिक फिर नवाजता भी है। और ये हमारा काम है कि भाई हम अल्लाह पाक की जो हैसियत है उसके मुताबिक अपने खुद को ना देखें, अल्लाह की हैसियत को देखें। अल्लाह के हजूर जब हम पेश होते हैं तो फिर अपनी आजिज़ी के साथ पेश हों। अल्लाह चूंकि कादिर मुतलक है, हर चीज पर कादिर है। फरीदी साहब, हमारी क्या औकात है कि हम उसकी हैसियत और उसके मकाम का इदराक हाँ कर जी सके। बिल्कुल नहीं, ना ना ना, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इस पूरे कायनात में एक इंसान मेरा और आपका जो कितना हिस्सा कितना है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, रेत के जर्रे बराबर भी नहीं। हाँ जी बिल्कुल ठीक ऐसे है, है। तो अल्लाह तबारक व तआला तो बहानों की तलाश बहानों में की है। तलाश, बिल्कुल हाँ जी, वो तो नवाजने के लिए। वो तो मुंतजिर है कि उसका बंदा बस उसकी तरफ एक कदम आए तो सही, हाँ जी वो फिर दौड़ के आता है। वो तो इंतजार में है कि उसका बंदा अपने रब का जिक्र अपने दोस्तों में करे और अल्लाह अपने बंदे का जिक्र अपने फरिश्तों में करे। और आप जानते हैं कि हर शब आखिर अल्लाह तबारक व तआला ये जानने के लिए कि उसकी मखलूक क्या कर रही है, वो फरिश्तों की जमात के हमरा आसमान दुनिया पे तशरीफ लाते हैं बिल्कुल ऐसे है। कि उसके बंदे क्या कर रहे हैं। अगर सोए हैं, मांग रहे हैं, जाग रहे हैं, अल्लाह की याद में खड़े हैं, तो वो फरिश्ते मोहब्बत का अंदाज देखिए, उसके फरिश्ते वापस आके जो है उसे अल्लाह को रिपोर्ट पेश करते हैं। हालांकि वो जरूरत नहीं है, अल्लाह को रिपोर्ट की जरूरत जरूरत नहीं है, नहीं है, अल्लाह हर चीज जानते हैं। जानते हैं वो काम भी जानते हैं जो हमने जो भी दिमाग में सोचा भी नहीं सोचा होता। नहीं है, ख्याल तक की बारीकियों से भी हाँ जी खालिक कायनात पूरी तरह वाकिफ और आगाह है। और फरिश्ते जवाब देते हैं कि बंदे ये कर रहे थे, कोई मांग रहा था, कोई ऐशो इशरत में था, कोई तेरे हजूर खड़ा था, कोई इबादत कर रहा था। तो फरिश्ते कहते हैं कि कुछ लोग मांग रहे थे। तो अल्लाह फरमाते हैं वो क्या मांग रहे थे, वो आपकी जन्नत मांग रहे थे, वो दोज़ख से निजात मांग रहे थे, वो आपकी मोहब्बत और रहम मांग रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उनको उनकी दुआएं कबूल कर ली गई और उनको परवाने जन्नत अता कर दिया गया। तो ये सारी सूरत हाल आपको कुरान मजीद के मुताले से ये पता चलता है कि जो जिसे इज्जत और अजमत मिलती है, उसकी इज्जत और अजमत के पीछे रख जगह का भी एक राज वो जरूर होता है। तो इसलिए ये अपने हमारे खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फरमाया कि भरोसे और यकीन से मांगो, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ही देने वाली वाहिद हस्ती है, वही दुआएं सुनते हैं, वही बिगड़े काम बनाने वाले। बिल्कुल ऐसे हैं। तो मलिक साहब हमारे इस प्रोग्राम का जो अगला सेगमेंट है वो
हम लोकल और कौमी खबरों पर नजर डालते हैं। जी। लोकल खबरों पर अगर हम नजर डालें हाँ जी। तो कल यहाँ दो बड़े इवेंट हुए हैं जो मैंने देखे हैं। एक इवेंट कानूनी इवेंट हुआ है, दूसरा जो है हमारे तलबा का इवेंट हुआ है। जी। तलबा के कल स्कूल कौंसिल्स के तमाम स्कूलों के, जिला भर के स्कूलों के और पंजाब भर के स्कूलों के जो स्कूल कौंसिल के इंतखाबात थे, जी। उसमें लिया में भी, जिला लिया में भी स्कूलों के एलिमेंट्री से लेकर हायर स्कूलों तक इंतखाबात हुए हैं। आपने भी उन इंतखाबात को विजिट किया, कैसा देखा उनको, और ये इदारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, मेरी जाती राय से आपका इत्तेफाक करना जरूरी नहीं, ठीक है। स्कूलों में इंतखाबात हुए हैं, स्कूलों में बच्चे जो है वोट डालने के अमल में शरीक थे, बच्चे जो है वो अपने इंतखाबी अमल में गहमा गहमी में, इंतखाबी शोर शराबे में मज़े में थे, और कल जो है पूरा दिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई। क्यों? कल असातिज़ा भी अमला इंतखाब का फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, और बच्चे जो हैं वोट डाल रहे थे और वोट मांग रहे थे। कल की तो पढ़ाई नहीं हुई। बाकी रहा कि इन स्टूडेंट्स काउंसलर्स के जरिए बच्चों की ग्रूमिंग में मदद हासिल करना, वो तो उसी शक्ल में हासिल हो सकेगी जब हमारे घर का माहौल, जब हमारे समाज का माहौल, हमारे सिस्टम का माहौल, चीज़ें जो है तो वो एक दूसरे के साथ जो जुड़ी हुई हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, तो फिर ग्रूमिंग हो सकती है। अच्छा, आप इसमें मैं बारहा अर्ज कर चुका हूँ कि स्कूल के तलबा और तालबात की ग्रूमिंग, उनकी अपलिफ्टिंग की जितनी ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत हमारे कॉलेजेस को है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले तलबा और तालबात को है। क्या स्कूल के बाद जब बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी आएंगे उस वक्त ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं है? ये बस गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसियां हैं, और जो हिकमत साज इदारे और शख्सियात हैं उनके अपने सोचने हैं कि स्कूल, जहां आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो तालीमी इदारे हैं, उन तालीमी इदारों में मुतवसत और गरीब घरानों के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं। सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में, इस सूबे में जो प्राइवेट सेक्टर के जो इदारे हैं, उनमें ज़ेर तालीम तलबा तालबात को इस ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं है? क्या वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो उनको आप किताबी कीड़ा रखना चाहते हैं? क्या वहाँ के जो बच्चे हैं, उनको क्यों हम नसाबी सरगर्मियों से दूर रखा गया है? ये जो एक गैप है, इस गैप को समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दरअसल वो सरकार के जो तालीमी इदारे हैं, उनको नाकामी से दो चार करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा हो चुके हैं। तो हमारे जो सरकारी इदारे हैं, हुकूमत जो है उनको प्राइवेटाइज करने भी जा रही है। देखिए, मेरी मालूमात की लिस्ट भी जारी हो ये चुकी है। उसी सूरत में ये वो रवैये है ना जी, कि जब तालीमी इदारों में जब आप एजुकेशन को उस पूरी कुव्वत के साथ डिलीवर नहीं कर रहे होंगे, तो फिर आप ये सोचेंगे कि हम इतना एक हाई स्कूल पे, मिडिल स्कूल पे जब इतना खर्च कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले में आपने ऑलरेडी एक तजर्बा कर रखा है कि आपने पेफ को कुछ स्कूल दिए हुए हाँ हैं। जी। अब वो पेफ का जो स्कूल है वो बड़ी कामयाबी के साथ चल रहा है। गवर्नमेंट स्कूल है। अब कल हम एक स्कूल में गए, ठीक है, उस स्कूल की हालत ये थी कि उसमें 132 बच्चे हाजिर थे। 132 बच्चे, हाई स्कूल है, हाई स्कूल है, 132 बच्चा उसका हाजिर है, और उसमें एनरोल्ड जो है वो 300 बच्चे हैं। अब ये जो धोखा दिया जा रहा है, वो 2 दिन पहले अखबार में खबर थी कि 1 करोड़ हाँ जी। बच्चों के जो ये दाखिले हैं वो फेक है, फेक, जाली। हाँ जाली जी। है। अब ये जो जाली प्रोग्राम चल रहा है, कहाँ चल रहा है? ये गवर्नमेंट के इदारों में चल रहा है। अब उसका क्या नतीजा होगा? ये देखें कि इतने ईएमईज ने विजिट किए, इतनी मॉनिटरिंग टीमों ने विजिट किए, ये इसकी एक्चुअल स्टोरी है, ये इसका इनरोल्ड पोर्शन है, तो ये तो स्कूल नाकाम है, लिहाजा इसको प्राइवेट खाते में डाल दो। ये जब प्राइवेट खाते में चलते जाएंगे, तो कल कला ये जो 132 बच्चे जो गरीब घरानों के लोग हैं, ये कहाँ से तालीम लेंगे? हाँ जी, क्योंकि प्राइवेट जब ये इदारे हो प्राइवेट हो जाएंगे जाएगा
तो लामहला उनकी फीसें भी बढ़ जाएंगी, अखराजात भी बढ़ जाएंगे, वो ठीक है तमाम ना। चीजें जो है। तो फिर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम जो सरकार के जो इदारे हैं, जो सरकार के तालीमी इदारे हैं, सरकार के जो अस्पताल हैं, इन अस्पतालों को और इन तालीमी इदारों को हम अपने सर से इनका बोझ वो उतार तो हमारे वजीर आजम पाकिस्तान ने स्टेटमेंट भी दे दी है कि भी सरकारी इदारे चाहे वो मुनाफा में चलने वाले हैं या खसारे में, तमाम को प्राइवेटाइज कर दो। कर दे तो हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत आपकी खिदमत करेगी ना। कौन सी खिदमत फिर बाकी रह जाएगी? अस्पताल की अगर जरूरत किसी को पड़ती है तो उसने हेल्थ फैसिलिटी परचेज करनी है, अगर एजुकेशन में किसी को दाखिला मतलूब है तो वो परचेज करेगा। लेकिन हमारे कानून का तो यही तकाजा है ना, जो हमारा मुल्की कवानीन है अवाम के लिए, कि भी अवाम को बुनियादी सहूलियात जो है, तालीम, सेहत, सफाई, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत इनसे जान छुड़ाना चाह रही है। हुकूमत करना क्या चाहती है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि हुकूमत इनसे जान छुड़ाकर फिर करना क्या चाहती है? हुकूमत करना चाहती है तो वो हुकूमत इंसानों पे करेगी या जिस्मों पे करेगी? जिस्मों पे। ठीक है ना जी। तो और अब क्या हो रहा है? अब भी जिस्मों पे हुकूमत हो रही है। तो फिर अगर ये जिस्मों, ये गुलामों पे जो हुकूमत करने का ख्वाब है, ये तो ख्वाब तो फिर बादशाहों का ख्वाब हो अच्छा सकता मलिक है, साहब, गुलामों अवाम को के नुमाइंदों का ख्वाब नहीं आप हो सकता। वो हुकूमत की जो गवर्नेंस की अब बात पे चले गए हैं, तो यहाँ और पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में गंदम का स्कैंडल, गंदम के जो इश्यूज है खरीदारी के, उस पर मुख्तलिफ सियासी तंजीमें भी एहतजाज कर रही हैं, अवाम काश्तकार भी एहतजाज कर रहे हैं। कल लिया में डिस्ट्रिक्ट बार ने भी एहतजाज किया, डिस्ट्रिक्ट बार के ओहदेदारान और वकला ने पास्को ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और शदीद रद्द अमल का इजहार किया। जी। और इसी तरह अवाम के एहतजाज के देखते हुए, अवाम की निशानदेहियों पर जाते हुए, तो फिर कल हमारे इदारे भी कुछ मुतहरक हुए और उन मुतहरक इदारों ने मुख्तलिफ पासपोर्ट सेंटर पर छापे भी मारे और वहां से जो उनके इंस्पेक्टर थे, कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ भाग गए, कुछ पर FIR हो गई। ये सारी कहानी। अब्दुल फरीदी साहब, आज जुमे का दिन है और तारीख कौन सी बताई आपने? तारीख मैंने आज 17 बताई है। 17 तारीख है, जुमे का दिन है, सब 9:30 होने वाले। हाँ जी, ये रोशन हकीकत है ना। रोशन हकीकत। इसी तरह आप इस रोशन हकीकत को अगले लम्हे भी आप मान लीजिए कि मुल्क का जो 75% है वो किसान है। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट का जो 75% ग्राहक है, खरीदार है, ठीक है, वो किसान है। 25% में कौन आता है? 25% में सरकारी मुलाजिम आ गया, डेली वेजर आ गया और ताजर आ गया। ठीक है, ये 25% आ गए, सरकारी मुलाजिम, डेली वेजर और ताजर। हाँ जी। अब 75% को आपने क्रश कर दिया। बिल्कुल ऐसे है। और तनख्वाहदार तबका तो पहले ही तंग है। हाँ जी, कि उनको महंगाई के मुकाबले में तनख्वाहें उनकी कम है और उनके पास जिंदगी गुजारने का सोर्स जो है वो बिल्कुल नापैद है और वो फाको जो है वो जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अभी आने वाले दिनों में 1-2 दिन में क्लर्कों की हड़तालें शुरू हो जाएंगी कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। हाँ जी। इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी मुलाजमीन का जो फिर 90% हिस्सा है, वो जो नॉन गस्टेड ग्रेड है, हाँ 1 जी। से 16 तक के लोग, वो तो आपकी तनख्वाहों के जो स्ट्रक्चर है उससे मुतमईन नहीं है। ठीक बिल्कुल। है। हाँ जी। डेली वेजर के पास काम नहीं है, मुलाजमीन के पास इनकम नहीं है, तो फिर बच गया आपका ताजर। ठीक है। अब ताजर क्या करेगा? ताजर के पास को खरीदेगा तो उसकी दुकान चलेगी। जब उसके पास खरीदार ही नहीं होगा तो फिर वो दुकान किराए की अगर उसके पास है तो वो किराए वाली दुकान अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपका किराया भी इतना, आपकी बिजली महंगी इतनी, आप और उसके बाद आपके मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो सारी के सारी इतने अखराजात पर खड़ी है कि उस अखराजात के नतीजे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सब खबरें ने 2 खबरें छापी है, जो बात मैंने की है। डिस्ट्रिक्ट बार लिया के अहदेदारान का वकला के हमरा पास्को ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा, किसानों को नजरअंदाज करने, मिडल मैनों को नवाजने के संगीन इल्जाम। और दूसरी खबर जो है वो ये छापी है, पास्को सेंटर पहाड़पुर पर FIA टीम का छापा, परचेज इंस्पेक्टर को पकड़ने की कोशिश, मजामत पर फरार। और इसी तरह पीर जगी
जो है थाना में एक FIR दर्ज हुई है और पास्को का एक इंस्पेक्टर वहां गिरफ्तार हुआ है, वो हमारी जिला इंतजामिया की तरफ से। तो इस पर रोशनी डाले ना। इस पे रोशनी ये है कि ये जो लुधियाने वाला इंस्पेक्टर साहब है, इसने परसों एक FIR दर्ज कराई एक किसान के खिलाफ कि किसान ने बोरियां डिमांड की और इस डिमांड को उसने कार्य सरकार में मुदाखलत करार दिया और उसके नतीजे में थाने में उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करा दी। और अपना हकीकी चेहरा ये है कि कल उसने एक आढ़ती को 1000 बोरी है वो लोड करा दी। किसान तो उस ताकुब में थे हाँ कि जी, इसने ना सिर्फ ये कि किसानों को इसने धक्के दिए हैं, बल्कि ये आड़तियों को और मिडिल मैनों दलालों को जो है ये उबलाइज कर रहा हाँ है, जी, उबलाई नहीं कर रहा, वो तो उसके हिस्सेदार है ना। हिस्सेदार है। ठीक है, उसके बाद फिर उससे वो उबलाई ना करे, उबलाई तो ये होता है ना मैंने सब आप किसी पर एहसान कर रहे हैं। अच्छा वो उसके बाद जो है उनके पीछे लग गए और उन्होंने जाकर वो बारदाना जो है 1000 बोरी वो उन्होंने बरामद की, उसकी रैकी की और असिस्टेंट कमिश्नर लिया को उन्होंने फोन पे कन्वे किया कि ये सूरत हाल है। AC लिया ने जाकर वो सारी चीजें बरामद की और नायब तहसीलदार लिया फारूकी साहब की मुद्दत में पास्को सेंटर के जो इंचार्ज हैं उसके खिलाफ थाना की जगह में FIR दर्ज हुई और वो गिरफ्तार हो गए। इसके नहीं मलिक साहब, आजकल तो वो इंतजामिया ने अपने रेवेन्यू के एहलकार वहां साथ नहीं बिठाए हुए पास्को वालों के बिछाए साथ, हुए हैं। तो फिर उस रेवेन्यू जो एहलकार है वो क्यों बच गया है? बारदाने का मालिक रेवेन्यू एहलकार नहीं है, वो पास्को नहीं की तो मुख्य रेवेन्यू एहलकार ने वो रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट नहीं की ना, तो तो ये फिर उस पर भी तो FIR होनी चाहिए, उसको जो उसकी निगरानी पे बिठाया था और हमारी जिला इंतजामिया ने, उससे तो फिर बचा गए। अमला रेवेन्यू तो ये लवली है ना जी, लवली, ठीक है ना। अगर अमला रेवेन्यू इतना जिम्मेदार होता तो लिया शहर और लिया जिला में होने वाले सरकारी अमलाक पर जो कब्जे हैं वो इसी तरह होते, लोगों की चीखों पुकार इसी तरह होती और क्या क्या उस पर बात की जाए। ये तो डार्लिंग है ना जी, अमला रेवेन्यू डार्लिंग, इस पे नहीं कुछ इस होगा, पे आप कुछ नहीं होगा। आप ये मुतमिन रहे। उस बाकी रहा पहाड़पुर का वाकया, वहां भी लोगों की चीखों पुकार FIA डेरा गाजी खान तक पहुंची। सब इंस्पेक्टर अब्दुल रजाक साहब को पहाड़पुर भेजा, उन्होंने सिविल जज नैया जो है उनकी रिक्वेस्ट की और उनके हमरा उन्होंने पहाड़पुर पास्को सेंटर पर छापा मारा। छापा मारने के दौरान वो पास्को के जो नवाजे गए अफराद थे उन्होंने मजामत की और उसे फरार करवा और दिया। मजामत के नतीजे में पास्को सेंटर का जो इंचार्ज है वो भाग गया और उसके बाद फिर एक FIR दर्ज हुई है पहाड़पुर थाना कोट थाना सुल्तान में। कोट सुल्तान में। ये जनाब सूरत हाल है, ये तो 2 FIR हो गई हैं तो और यहाँ जितने भी सेंटर है उस तमाम की यही सूरत हाल यही है। सूरत हाल है। किसान रुल गए हैं, यकीन करें आप इस वक्त मैं आपसे अर्ज करूं कि आपके पास अगली फसलें काश्त करने के लिए किसान के पास पैसा नहीं है। अब उसे वो पहले ही सूद पे अपने आप को वो गिरफ्तार करा चुका है, जकड़ा जा चुका है। अब वो जनाब जब अगली फसल काश्त नहीं होगी और ये और फिगर ये आ चुके हैं, कपास के फिगर आ चुके हैं, बागात के आ चुके हैं, बाकी फिगर आ चुके हैं कि अगली फसलात जब कम काश्त होंगी तो अल्टीमेटली जो कौमी ग़िज़ाई ज़रूरत है, आप भी कहते हैं कि ज़राअत कौमी मीशत में रीढ़ की हड्डी है, वो रीढ़ की हड्डी तो भी अब वो खिचकने लग गई किसान है। की रीढ़ की हड्डी टूट गई। नहीं, मुल्क की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, किसान की तो टूटी है, मुल्क की रीढ़ की हड्डी जो है वो टूटने के करीब है। अगर किसान जब खुशहाल नहीं होगा, वो किसान बदहाल होगा तो मुल्क का 75% बदहाल हो गया और वो 25% को भी ले डूबेगा। तो यहाँ हमारे वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, बातें नहीं अमल का वक्त है। आज़ाद कश्मीर अवाम के साथ मिलकर तरक्की खुशहाली का सफर तय करेंगे। और इसी तरह वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फरमाते हैं, पाकिस्तान से मजबूत रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा। 23 अरब के तारीखी पैकेज पर मन्नो अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। ये चौधरी अनवारुल हक साहब फरमा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक के दौरान शर पसंद अनासर की तरफ से सूरत हाल को बिगाड़ने और जलाओ घिराव की कोशिश नाकाम हुई, मामलात को बेहतर तरीके से हल कर लिया गया। दुआ गो है, हम भी दुआ गो कि जो ये फरमा रहे हैं और हमारे
अल्लाह करे हमारे ऐसा हो जाए। वफाकी वजीर दाखिला फरमाते हैं आजाद कश्मीर कशीदगी में हमसाया ममालिक मुलव्वस आलमी बिरादरी को सबूत दिखाएंगे। जरूर दिखाने चाहिए, बिल्कुल दिखाने चाहिए आलमी बरादरी को। और मगर ये है कि हम पर भी तो जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपने हिस्से का कितना काम कर रहे हैं। हमारे जो बैंक है, असासा जात है, वो तो है फॉरेन में, और कर्ज लेकर मुल्क को चलाया जा रहा है, और फिर करप्शन और बद इंतजामी ने पाँव पकड़े हुए हैं। दुबई लीक्स में हमारे वजीर दाखिला साहब की फैमिली का नाम भी है, मियां शहबाज शरीफ की वो फैमिली का सब नाम के भी नाम है। है, वो अब किस किस का नाम आप लेंगे, वो सब के नाम है। ठीक है ना जी। बात असल में ये है कि हमारे जो असासे हैं वो फॉरेन अकाउंट्स में है, और फॉरेन अकाउंट्स पाकिस्तान में हम लाते हैं कर्ज की शक्ल में, और कर्ज की जो हथकड़ियां हैं वो हमारे हाथों और पाँव में पहना दी गई हैं, और हमारी सोच भी उसी तरह है और हमारा अमल भी उसी तरह है, और फिर हम किसी और को दोष देते हैं। वो जाहिर है अगर हमारा कोई मुखालिफ है, दुश्मन है, तो उसने अपने अपने टारगेट को अचीव करने की अच्छा, एक कोशिश और करनी खबर है मलिक साहब पंजाब गवर्नमेंट की। हमारी मोहतरमा वजीर आला पंजाब फरमा रही है हुकूमत का लाहौर व दीगर शहरों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसें चलाने का ऐलान उन्होंने किया है। लाहौर में रवां साल 27 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। पंजाब के बड़े शहरों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम मुतअर्रफ करवाया जाएगा। और इसी के साथ ही और है कि लाहौर के अलावा तमाम शहर ट्रांसपोर्ट की सहूलत से महरूम है। पैसा लाहौर पर खर्च किया जा रहा है। ये वजीर ट्रांसपोर्ट और हिजाज शफी मेरे जुमलों का तबादला हुआ है। देखिए जी, आपके पास ऑयल ट्रेन और मेट्रो बस का तजर्बा हो चल रहा है, ठीक है। उसके नताइज पहले आप शेयर कर दें कि जी वो खसारे में है या प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है तो कितने प्रॉफिट में है। अगर वो तजर्बात कामयाबी से चल रहे हैं तो आप एक नया तजर्बा कर लें। अगर वो उसमें हम बराबर बराबर हैं या उसमें हम पीछे जा रहे हैं, तो फिर नया तजर्बा करने से बेहतर है कि आप अच्छी तरह प्लानिंग कर लें। अच्छा, हमारी वजीर आला साहबा ने एक और भी फैसला किया है। 4 मिनट बाकी हैं हाँ जी, आपके आज के सुथरा प्रोग्राम में। पंजाब प्रोग्राम के लिए यूनियन कौंसिलों को लोडर रिक्शे फराहम करने का फैसला किया है उन्होंने। नैया शहर वाले जो नक्शे हैं उनकी मुरम्मत पहले करा लें, और उसके बाद यूनियन कौंसिलों के जो नक्शे हैं उनको बसें दे दें, आप ट्रक दे दें। अच्छा, हमारे केपी के वजीर आला ने यहाँ एक खबर शाया हुई है खबरें में, अली अमीन गंडापुर का लोड शेडिंग खत्म ना होने पर ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल खुद संभालने का ऐलान। तो क्या करेंगे फिर ये? वो कहते हैं हम अपना वहां बिठा देंगे अपने अफसरान, अपने अफसरान बिठा देंगे। तो अब बगैर अफसरान के वो चल रहे हैं। अब क्या उनके अफसरान नहीं बैठे हुए? भाई वीआईपी जब कल्चर जब तक खत्म नहीं होता, इस मुल्क के मसाइल जो है हल नहीं होते। आप वजीर आला साहब अपना बताएं, आपने वीआईपी कल्चर के खात्मे के लिए आपने अपना हिस्सा कितना डाला है? अच्छा, यहाँ एक और बात है, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो मुअत्तल कर दूं, क्या ये दयानतदारी है? मुअत्तली के खिलाफ रोजाना समाज करके फिर फैसला तो करते, कानून हम तोड़े या मिलिट्री बराबर है। नैब तरामीम केस की 53 समाते ताज्जुब है, इतना अरसा क्यों लगा? ऐसे कवानीन मुअत्तल करने हैं तो पार्लियामेंट ही कर दे। ये ठीक है कि कानून बनाती भी पार्लियामेंट है, और मुअत्तल करना है तो उसमें तरमीम कर लें। अच्छा मलिक साहब, यहाँ एक और खबर है, नून लीग सेंट्रल वर्किंग कमेटी का कल पार्टी सदर के इंतखाब के लिए इजलास होने जा रहा है। तो मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदर मेरे ख्याल में बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने रिजाइन कर दिया है इस्तीफा दे अपने दिया भाई है, के लिए। और अब देखें कौन बनता है, और ज्यादा तो कोई यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ही अच्छा, बने। भूखी नंगी कौम पर हमारे वजीर आजम ने एक और फैसला भी किया है। क्या फरमाया? वो आज की ये रोजनामा जंग की खबर है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तोसीक करने का फैसला। मुल्क कौम के लिए जो भी फायदेमंद चीज है उस पर बिन अमल होना चाहिए, और वो वक्त की जरूरत है, कौम की आवाज है। बिल्कुल ऐसे ही है ये। इसी तरह मलिक साहब, ये रोजनामा दुनिया है, उसमें हमारे वजीर दाखिला फरमा रहे हैं दुबई लीक्स लगता है मखसूस लोगों को टारगेट किया गया बतौर बिजनेसमैन, जहां चाहूं बिजनेस करूं। क्या पाकिस्तान मुल्क बिजनेस के लायक नहीं है? हमारे वजीर दाखिला पाकिस्तान के हुकूमत करने के लायक है, बिजनेस करने के लायक नहीं है। मैं वजीर दाखिला साहब के इस मौक़िफ़ से ये समझा। हैं। तो हमारे शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं अवामी फलाह के मंसूबों में ताकीर और खराबी बर्दाश्त नहीं। ये पासपोर्ट का महकमा उनका नहीं है, वफाकी गवर्नमेंट का। तो ये
वफाकी महकमे से ही रिलेटेड है, और वो फलाह का काम तो कर रहे हैं कि उन्होंने एमडी पास्को को मुअत्तल कर दिया है। ये बस वो फलाह होगी है कि लोगों की गंदम खरीद कर ली गई है। एमडी पास्को की मुअत्तली के बाद मसला हल हो गया। अच्छा, तो जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भी गंदम खरीदारी पर एहतजाज, ये लाहौर में मार्च, कई शहरों में किसान बोर्ड जमात इस्लामी के रहनुमा गिरफ्तार हो गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो एनर्जेटिक शख्सियत है, कराची से वो ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान के वो अमीर बन गए, और उन्हें अमीर बनते ही जो मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं उनमें गंदम का बहरान भी शामिल है, और इस चैलेंज से निपटने के लिए उन्होंने इससे पहले जो है अपने अजला की जमातों को हिदायत फरमाई कि अपने अजला में हेड क्वार्टर्स पे अपने वो प्रोटेस्ट करें, और उसके बाद कल जो है लाहौर में एक बड़ा शो हुआ। शो बाहर बड़ा ज़रूर है, मगर मसला मसला वही का वही मसला है। जो का तो, क्योंकि लोग भी हकीकी तब्दीली की तरफ नहीं जा रहे। बिल्कुल ऐसे है। तो यहाँ मलिक साहब एक दिल दुखाने वाली खबर है मलिक वाल से। ये रोजनामा दुनिया की खबर है। दरिया जेहलम में कश्ती उल्टने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बाग हुए। बदकिस्मत खानदान ने पीरा वाले से कार कश्ती पर लोड कराई जो तवाजुन बरकरार ना रख सकी। 35 अफराद सवार थे। जाँ भाग अफराद में 2 खवातीन 4 बच्चे शामिल है। वजीर आला का नोटिस है। मुतासरा फैमिली के 60 लाख रुपए का ऐलान किया उन्होंने। ये जो कश्ती पर कार की वो लोडिंग, फिर इतने एक कश्ती में इतने अफराद की जो है, ये हमारी गुड गवर्नेंस पर सवाल या निशान नहीं है। हमारे गुड गवर्नेंस का ताल्लुक तो अपनी जगह पे, मगर हमारी कौम को और लोगों को भी देखना चाहिए कि उस कश्ती की कैपेसिटी कितनी है, कि उसमें अफराद भी लोड हो गए, गाड़ियां भी लोड हो गई, और उसके अलावा जाहिर उनका साजो सामान भी होगा, बाकी चीज़ें भी होगी। और इसमें जो और चीज़ है कि आप देखें कि जो मुहज़्ज़ब मुमालिक है वो कश्ती के सफ़र को सेफ्टी बेल्ट के बगैर जो है वो सफ़र की इजाज़त नहीं देते, और हमारे यहाँ सेफ्टी जैकेट जो है वो पहनने का रिवाज ही कोई नहीं है। रिवाज ही नहीं है। अगर इन अफराद ने नहीं मलिक साहब, एक कश्ती पर एक कार और 35 अफराद के जो है ना वो सवार होना, ये जाहिर ओवरलोड है। हाँ जी, ओवरलोड है, इसमें तो कोई बात है कोई नहीं। अब ओवरलोड है, मगर इंसान तो वो तो ज्यादा कीमती है। अगर आपके पास कश्ती में लाइफ जैकेट्स नहीं है तो फिर हमें कश्ती पे सवार नहीं होना चाहिए। ये गालिबन यही है और कि वो जिनकी निगरानी में वो कश्तियां चल रही हैं, जी अगर वहाँ की जिलाई गवर्नमेंट के निगरानी में चल रही है ना, जो ठेके देती है, जी आया कि वो उनको चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके नशेर में कुल कितना चेकिंग होती है आप बताएं। बस यही दफ्तरों में बैठे हुए बयानात होते देखना हैं। ये चेकिंग तो पाकिस्तान तो अल्लाह के सहारे चल रहा है। अभी हमारे नशेब का जो 70 किलोमीटर का एरिया है वहाँ जगह जगह पतन और कश्तियाँ चल रही हैं, तो वहाँ कितने लाइफ जैकेट्स है? बस ठीक है, चल रहा है। जो कश्ती वैसे पार का हमारे कश्ती पार प्रोग्राम लग को देखने वाले कोई दोस्त अगर मौजूद है, राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब बिल्कुल और नेक तमन्नाओं और दुआओं का आपको उन्होंने तोहफा भेजा है, और कमर एहसान साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो मैं नाम नहीं ले सका, उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। तो आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अल्लाह पाक के कुरान करीम की एक आयत के तर्जमे से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, जिसमें उन्होंने आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, अल्लाह से मांगने का दिन है और गिड़गिड़ा कर मांगने का दिन है। तो क्योंकि ये हफ्ते का एक दिन जो होता है, ये यौमुल जुम्मा जो है, ये हाँ जी, इसमें अल्लाह पाक ने इनाम का एक ऐलान किया है। उस आयत शरीफ का तर्जमा जो है वो बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी है, यानी बाग और अंगूर और हम उम्र नौजवान औरतें और शराब के छिलकते हुए गिलास, वहां ना बेहुदा बातें सुनी जाए होगी, ना झूठ होगा, खराफात होगी, ये सब तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सिला है, इनाम मुतय्यन है। ये अल्लाह पाक ने हमें इनामात से नवाजने का ऐलान किया है। आज के जुम्मे तो मैं अपने यहाँ लिया टीवी एचडी के देखने और सुनने वालों से ये आज गुजारिश करूंगा कि आज जुम्मतुल मुबारक का जो दिन है, इसको आप अपने इनाम के तौर पर अल्लाह की तरफ से पालें और अल्लाह से मांगे, और अल्लाह मांगने वाले को देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जो
آیت مبارکہ کا ترجمہ ہم نے پیش کیا ہے، اس میں اللہ پاک نے اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اللہ نگہبان۔